Convert, physiotherapist from Physio Solution. He will give a lecture. वो आज lecture देंगे physio के ऊपर, और जो कि physio एक is a very important एक aspect है आजकल हमारे sports sciences का. और पठाना साहब का हैंग हो गया सर. नहीं सर, हैंग हो गया सर. आप बोल दीजिए सर. ओके पठाना साहब. हेलो. हाँ हो गया ठीक सर, बोलिए. Yes, yes. Miss Yes, sir. Vandana, please start. हेलो. हेलो. हाँ कीजिए, शुरू कीजिए अपना. ओके. Can you see my screen? आपकी. Yes, yes. Okay. Yes, A ma'am. very warm welcome to all the participants and officials here today. I'm really delighted to connect with all the gymnasts here, the little kids also here, and their parents, and our all old Indian gymnasts, and all the officials. And I'm really thankful to the program director, Mr. Nirbhay sir, and Mr. Patania sir, Mr. Mangla, and other experts like Rohit and Sandhya Kaul. So I'm really thankful to all the officials for inviting me today to speak over the topic, which is sports injuries and prevention in gymnastics. So let's start. So gymnastic, the word gymnastic came from the Greek word which is gymnos, means the naked, but it is generally means to be trained and exercise. It is a sports of grace. So a gymnast, as they are very skilled, so with the skill they need to be very graceful to show the game, to play the sport. So before we start about the gymnastics, I would like to speak about very common basics, which is a principle of individuality, because benefits of physical activity vary from person to person. Every person is different. They have different characteristics like hereditary, age, gender, ethnicity, their lifestyle, their community, their current fitness and health status, and there are many factors. So before we play any sports, we need to be specific. We need to know that which sports we are going to play. So to improve in that sports, you need to be very, very specific. Like if swimming, what it does, it will just develop your aerobic endurance, but not muscular endurance for running. And similarly, running laps, if there is some athlete, that what will happen to his body, it will help him to develop his overall conditioning, but will not develop your skill at the throwing, or he will not become a good cricketer as he is preparing for athleticism, right? So it will build up more power and muscular endurance in the athlete. So as the gymnast we talk about, they need to condition overall joints and all the muscles. They need to be powerful and graceful. They first learn to perfect a skill and then work on making their bodies look elegant while performing it. So in gymnast, the upper body act as a weight bearing, where they uses both their arms, legs, putting them risk for the injury to almost any joint in the body. So some gymnastics injuries are like bruises, scrapes are unavoidable. So what are the prerequisites? What are the prerequisites of gymnast? So gymnastic is a sport that includes rigorous physical activities, and these sports require a lot of balance, strength, flexibility, power, endurance,
coordination, agility. So these movements involved in gymnastics contribute to the development of arms, legs, shoulders, back, chest, and abdominal muscle group. So as you start the gymnastic from the early childhood, more your body will be flexible, more balance control will come, because the motor skill. What is motor skill? Motor skill is the activity which is done by the group of muscles. So motor skills can be developed at the early childhood, which really enables your child to grasp these skills very fast. Suppose your child is 6 years and you age. So his capability to learn the skill will be faster, though he will not be doing it in a proper way, but we have to engage the child in a fun mode. Moreover, the drills of the stretchings, fun movements, dancing movements, so that he will understand the skill and gradually he will adapt his body. Slowly his arms, shoulders, back will be undergoing slowly adaptations, and the kind of coordination and balance then you can see him in the at the age of 10 years. So there is a difference. If I enter my child at the age of 10 years, Dr. Vandana, then please, sorry, there will sorry be for a difference. Dr. Vandana, please, sorry for disturb. Please आप हिंदी में करोगे तो that is a better. अच्छा अच्छा, ओके ओके सर. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जितनी जल्दी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में एंगेज करते हैं, उतनी ही जल्दी हमारे बच्चे इस एक्टिविटी को सीख पाते हैं, क्योंकि जो हमारी ग्रास रूट लेवल से काम होता है, जो ग्रास रूट लेवल से हम इस चीज को काम करते हैं, वही इतनी जल्दी कैपेबिलिटी हमारा बच्चा सीखता है. जैसे कि टूथब्रश ले लीजिए, क्या हम आज तक टूथब्रश करना भूले? नहीं भूले. व्हाई? बिकॉज इट इज अ फ्रॉम ग्रास रूट लेवल मोटर स्किल है ये हम भूल नहीं सकते, क्योंकि हमने बचपन में सीखा था. साइकिलिंग करना हम नहीं भूले, लेकिन हम ड्राइविंग अब बड़े होकर सीख रहे हैं, बड़े होकर सीख रहे हैं, राइट? तो हमें उसमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हमें बहुत टाइम लगता है उस चीज को सीखने में. सो जो हम अर्ली चाइल्डहुड से अपने गेम और अपने स्पोर्ट्स को डेवलप करते हैं, उतनी ही जल्दी हम अपने स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं, अपनी बॉडी को अडेप्ट कर सकते हैं. और जिम्नास्टिक एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आपको टाइम नहीं लगेगा अगर आप इसको अर्ली एजेस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट. यू कैन से जो एक्टिव स्टार्ट है वो स्टार्ट हो जाती है 0 to 6 इयर्स तक बच्चों की, जिसमें बच्चों की मोटर स्किल्स, लोकोमोटर स्किल्स बहुत एक्टिव होते हैं, बच्चे की कैपेबिलिटी जो होती है, रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे होते हैं, तो आप बच्चे को सिखा सकते हैं. फंडामेंटल्स आप बच्चे को सिखा सकते हैं एट द एज ऑफ 6 to 9 इयर्स कि इसके रूल्स क्या है, बेसिक्स क्या है, स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या है. लेकिन हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए, जैसे कि हम अपने बच्चे को जिम्नास्टिक करा रहे हैं, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, बच्चे की स्ट्रेचिंग होगी, स्टेमिना भी इंप्रूव होगा, लेकिन कुछ और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी हमें बच्चों को करानी चाहिए. जैसे कि आप अपने बच्चे को टेबल टेनिस में एंगेज कर सकते हैं. इससे क्या होगा उसका, बिकॉज देयर इज अ हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इन दिस मूवमेंट. टॉप स्पिन जो बच्चे करते हैं, टैप 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 करते हैं, तो उससे क्या होगा, उनका आई मूवमेंट जब होगा, ब्रेन से कोऑर्डिनेट होगा, तो बच्चे का रिफ्लेक्सेस इंप्रूव होंगे, तो वो स्किल को जल्दी लर्न करेंगे. स्विमिंग सिखा सकते हैं बच्चे को, उससे उसका एंड्योरेंस डेवलप होगा. तो हमेशा आपको कंबाइंड स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए टू लर्न वन स्पोर्ट्स इन स्पेसिफिक. नाउ द एज ऑफ लर्निंग टू ट्रेन, जहां पे आप बच्चे को ट्रेन करते हैं, दैट इज द एज ऑफ 10 to 12 इयर्स. 10, 13 to 16 जो आपने ट्रेन किया है अपने बच्चे को, उसी को बार बार रिपीट करना. फिर 17 to 23 में उसको कंपटीशन लेवल्स पे लेके जाना. एंड दिस इज हाउ योर चाइल्ड ग्रेजुअली ग्रोज अप, adapt the body and learns the skill, and he is capable of presenting in a better way. So this is the long term athlete development which helps the youth sports, fitness and physical activity. So these are the elements of athlete development model which even the Khelo India is working, that how from where we can make our child to grow from grassroots level to the peak performance. तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल से ट्रेनिंग का क्या फायदा होता है, बच्चों को पहले से एंगेज करने में स्पोर्ट्स के क्या फायदे हैं, और किस तरीके से हम उनकी बॉडी की कंडीशनिंग करा सकते हैं. So basically there are 7 types of gymnastics like women and men: artistic, rhythmic, trampoline, tumbling, acrobatic, aerobic, gymnastic and group gymnastics, which you all are aware of.
तो ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा आर्टिस्टिक या रिदमिक जो भी जिम्नास्ट करना चाहता है, बट उसके जो कुछ रूल्स हैं, हमें जब भी हम जिम्नास्टिक अपने बच्चों को कराते हैं उसमें सेफ्टी गियर्स होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. What gear is needed depends on the event, like uneven bars, floor routine, balance beam, etc. तो इसमें wrist straps, guards and grips. Like male gymnast uses these on still rings, high bar, parallel bars, and female gymnasts wear them on the uneven bars. So they improve a gymnast hold. इस apparatus के through क्या होता है, gymnast की जो holding है that is getting stronger, and gymnasts, especially beginners, should use these grips, tapes or gauze to protect their hands from blistering and tearing. So it is very important to use these protective tools, and coaches always emphasize to use these tools. Footwear. Shoes for doing the vault usually have a reinforced toe. So it helps to absorb the pressure of landing. अगर आप right shoes vault पे पहनते हैं तो वो जो आपका force है, it acts as a shock absorber. So you need to wear it to handle the pressure of landing. So some gymnasts wear gymnastic shoes with rubber soles to protect against slipping while on the balance beam. So this is also you can do. Plus spotting belts. Spotting belts क्या करती है? It gives you a hook into the cables और वो ceiling के साथ attach होती है, and they also help support the gymnast, which you can see in this picture in the still ring. What is Ashish Kumar, very renowned gymnast who is doing this ring. So this is how these supportive items we need to know. So what are the common gymnastic injuries? The common gymnastic injuries are wrist fractures, fingers and hand injuries, cartilage damage, ACL, which is knee injury. Knee and low backs are also very much affected in gymnast. Spinal fractures, Achilles tendon. Achilles tendon, it is the injury जो आपके कहाँ पे होती है? Ankles में होती है. Sprains, shoulder instability, Colles fracture, again your forearms like fracture. Burners and stingers, जिसमें बहुत severe head injuries होने के chances होते हैं जो अभी हम discuss करेंगे. तो हम हमेशा what we tell our gymnasts how to fall, we always teach them how to fall and land safely to decrease the risk of damage to the spine, head, neck or wrist. So when a child falls or when a gymnast falls, they result only in the bruises and scrapes like cuts also, so which are not generally serious. But we need to tell them कि आप कैसे लैंड करोगे, कैसे जंप करोगे, कैसे फॉल करोगे, ताकि आपकी जो इंजरी का रिस्क है वो कम हो. अगर आप लैंड करोगे in some awkward position, that will lead to injury risk factor. If you miss your foot on the beam or you miss your grip on the bar, that will also lead to injuries. And feeling pain after practicing a skill over and over. Head injuries from a fall can range from mild to severe. अगर आप बार बार fall करते हैं on your head or over your shoulder, so that leads to some severe injuries which you need to take care of. So जो basic causes हैं gymnastic injuries के वो क्या है? Like there can be some insufficient flexibility. अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको जिम्नास्ट करने में प्रॉब्लम भी होगी प्लस इंजरीज भी होगी. इसलिए अर्ली चाइल्डहुड में आप जितनी जल्दी अपने बच्चे को एंगेज करते हैं जिम्नास्टिक स्पोर्ट्स में, इवन आप कोई दूसरा भी स्पोर्ट्स अगर उसको कराना चाहते हैं, लेकिन एट फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड इफ यू एंगेज योर चाइल्ड इन जिम्नास्टिक, इट्स अ वंडरफुल स्पोर्ट्स फ्रॉम वेयर आपका जो बच्चा है वो फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, कोर स्टेबिलिटी सब चीजों में इंप्रूव करेगा. सो इट्स अ एक्सीलेंट स्पोर्ट टू स्टार्ट the career of sports for any person, right? Plus और क्या हो सकता है अगर आपकी जो strength है वो कम है, arms में, legs में, core means back में, poor balance है आपका. Balance हमेशा it comes with the practice. You have to practice out some balance exercises which we will discuss how. Imbalances, अगर आपकी strength और flexibility में imbalance है, एक तरफ strong है दूसरी तरफ नहीं है, तो ये एक तरीके का इम्बैलेंस है जो इस तरीके की
आप देख सकते हैं इस तरीके की मूवमेंट्स, रिदमिक मूवमेंट्स को करने में आपको बहुत बैलेंस चाहिए, बहुत ही कोऑर्डिनेशन चाहिए. इट इज अ स्किल रिक्वायर्ड. सो यू नीड टू नो अबाउट ऑल दीज पैरामीटर्स. So you can see this. This is so dangerous move you can see of Ashish he is doing. And intrinsic abnormalities matter करती है आपके overuse injury में. Intrinsic abnormality यानी आपकी अंदर की abnormalities क्या है, muscle imbalances क्या है, कौन सा joint है जो जिसकी stability कम है. Extrinsic है बाहर के equipments, apparatus, sports imposed deficiencies. They are also very important. So जो intrinsic abnormalities है उसका क्या मतलब है? Like there is some malalignment of your body parts. Maybe your posture is not correct, right? It can be your feet posture, your spine posture. Instability of joints. Your joints are not stable. आपकी जो muscle strength है उसमें imbalance है. Suppose आप deltoid muscle जो आगे का biceps है उसकी strengthening करते हो, लेकिन जो triceps है उसकी नहीं करते हो. Similarly आप अपने क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग करते हो लेकिन हैमस्ट्रिंग की नहीं करते. प्लस वीकनेस ऑफ मसल्स. इफ योर मसल्स आर रियली वीक टू टेक द लोड ऑफ दिस जिम्नास्टिक drills and skills which is very demanding sports. And इंट्रिंसिक एबनॉर्मलिटीज क्या हो सकती है? आपकी फुट मोर्फोलॉजी. सपोज आपका फ्लैट फीट है. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे के फीट जरूर चेक करें. क्या उसका फीट फ्लैट तो नहीं है या केवस तो नहीं है. केवस मतलब कि एक तरफ का पैर का झुकाव होना. ये स्ट्रेट है आपका फीट, ये स्ट्रेट है, कहीं वो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है. तो ये आपको अपना फुट एग्जामिनेशन एक पेरेंट खुद कर सकता है. और अगर उसको लगता है कि मेरे बच्चे के पैर में आर्च, जो आर्च जिसे हम कहते हैं नॉर्मल आर्च में कुछ प्रॉब्लम है, तो दे कैन कम टू मी, दे कैन ऑलवेज आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन कि आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं. क्योंकि अगर आप अपने बच्चे का फुट मॉर्फोलॉजी पोस्चर पे काम करते हैं तो आप अपने बच्चे की लैंडिंग एक्टिविटीज, वेरियस एक्टिविटीज यू कैन इम्प्रूव. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. सो बाहर की एबनॉर्मलिटीज, एक्सट्रिंसिक क्या क्या हो सकते हैं? ट्रेनिंग एरर्स हो सकते हैं, कोई इक्विपमेंट है जो मिसमैच हो जाता है या फेलियर हो सकता है, technical errors हो सकते हैं, environmental factors. So these are the extrinsic abnormalities which the technical officials always take care of before you start any sport. So what are the muscle overuse injury? जब हम repeatedly किसी चीज को करते हैं तो हमारी मसल्स पे रोज एक तरीके की लोडिंग होती है. तो वो कैसे हो सकता है? मसल स्ट्रेन्स हो सकते हैं. उससे क्या होगा? क्यों होता है वो? आपने ओवर ट्रेनिंग की है, वीकनेस है, अपोजिंग मसल की टाइटनेस है, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम नहीं कर सकते हो. तो अगर इससे क्या होगा? आपकी मसल ओवरलोडेड होगी. ओवरलोड होने से क्या होगा? आपकी मसल में छोटे छोटे माइक्रो टियर्स डेवलप होंगे जिन्हें ट्रिगर पॉइंट कहते हैं. एडहेशंस होंगी. मसल वो ट्रिगर पॉइंट्स क्या बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू बना देते हैं जिससे आपकी मसल में टाइटनेस आएगी. उस मसल टाइटनेस की वजह से क्या होगा? आपकी रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट होगी. रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट होगी तो उससे क्या होगा? इनफ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मसल स्ट्रेंथ इम्बैलेंस होगा और उसको आपको बायोमैकेनिकल एरर्स देगा और उससे आपकी मसल ओवरलोड होगी. तो इस ओवरलोड से बचने के लिए आपको प्रॉपर रिकवरी मेथड्स अपनाने चाहिए. आपको वो हम डिस्कस करेंगे कैसे. बाकी क्या क्या इंजरीज हो सकती है? बोन्स में हो सकती है, मसल्स, कार्टिलेज, जॉइंट कैप्सूल्स, लिगामेंट, नर्व्स, they all are involved in your overuse injuries. Like नी में क्या होगा? अगर आपको एंटीरियर नी में पेन होता है, सपोज जो आपका नी जॉइंट है उसके आगे का जो पटेला होता है, अगर उसमें पेन है तो उसको पटेलो फिमोरल सिंड्रोम कहते हैं. वो क्यों होता है? आप बार बार लैंडिंग करते हैं, इम्पैक्ट आपके ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस आपके नी जॉइंट में जाता है. अगर आपकी हैमस्ट्रिंग क्या होती है? बैक ऑफ द थाई, और क्वाड्रिसेप्स होती है एंटीरियर थाई. ओके, सो क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग की अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, आपकी क्वाड्रिसेप मसल जो एंटीरियर थाई मसल होती है अगर वो वीक है, या फिर जो आपका पैर है वो हाइपरप्रोनेशन का मतलब मेरा ये है, ये मेरा पैर है तो ये ऐसे है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और बीच का इसका एरर ऐसे है, यानी कि झुकाव जो है अंदर की तरफ है. तो नी का अलाइनमेंट है वो ऑटोमेटिकली टेढ़ा हो गया.
ऑटोमेटिकली जो आपकी ग्रेविटी है वो लाइन ऑफ L2 पे जो जाती है, हमारी ग्रेविटी ऑफ लाइन वो प्रॉपर नहीं जा रही, बायोमैकेनिकल एरर आ गया, तो उससे क्या होगा, आपके पैरों में दर्द रहेगा, आपके घुटने में हमेशा एंटीरियर जॉइंट लाइन पे पेन रहेगा। और क्या रीजन हो सकता है, ओवर ट्रेनिंग हो सकता है। तो दीज आर द एंटीरियर लिगामेंट्स जो आप देख सकते हैं, जो जिमनास्ट को बहुत इंजरीज होती हैं, जैसे मेनिस्कस टियर हो जाते हैं, लिगामेंट टियर हो जाते हैं। लिगामेंट टियर कैसे होगा, लैंडिंग से होगा, इम्प्रॉपर बैलेंस की वजह से होगा, सडन क्विक ट्विस्टिंग मूवमेंट से भी लिगामेंट होता है। आप देख सकते हो जैसे कि जब आप जंप करते हो तो आपकी जो मसल है, क्वाड्रिसेप मसल है, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है टू एक्सटेंड द लेग। तो आपने जब जंप किया तो ये जो आपका पटेला है, यू कैन सी दिस इज अ पटेला नी कैप, जिसे हम नी कैप कहते हैं। ये नी कैप पे इम्पैक्ट आते ही आपका एक टेंडन है जिससे जॉइन करता है टिबिया से, और ये आपकी शिन बोन है। तो शिन बोन फ्रैक्चर होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अगर आपकी बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं है। तो यू कैन सी दिस मूवमेंट व्हिच इज वेरी कॉमन इन द लैंडिंग जंप्स ऑफ जिमनास्ट। सो ACL इंजरी होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं इस तरीके के केसेस में और इस तरीके के मूवमेंट्स करने में। नर्व इंजरी क्या होती है, एक नर्व होती है टार्सल टनल सिंड्रोम हम उसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी ओवर ट्रेनिंग की वजह से होता है, और एक नर्व होती है जो लेटरल साइड पे जाती है और पैर के अंदर से टिबिया की तरफ जाती है। उसमें क्या होता है, कंप्रेशन आ जाता है। जब बार बार आप लैंडिंग करते हैं तो जो आपकी नर्व है वो कंप्रेस होती जाती है। उस कंप्रेशन को रोकने के लिए आपको अपने फीट का स्ट्रक्चर ध्यान रखने की जरूरत है, आपको अपने लैंडिंग पैटर्न की जरूरत है, ताकि आपकी वो जो टार्सल टनल सिंड्रोम जिसे मैं बता रही हूँ, वो जो नर्व है उसकी इंजरी ना हो, उसका बचाव करें। प्लस प्लांटर फेशियाटिस। प्लांटर फेशियाटिस एक ऐसी इंजरी है जो आपकी काफ मसल अगर टाइट है तो उससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी पैर की कम होगी, और एक टेंडन होता है जो हमारे हील बोन से अटैच होके पैर के अंदर की तरफ जाता है, ये फेशिया होता है। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। बहुत ही कॉमन इंजरी है ये। आप सुबह उठेंगे, आपको क्या लगेगा कि मेरे पैरों में स्टिफनेस है, मॉर्निंग स्टिफनेस है। मैं थोड़ी देर उठता हूँ तो स्टिफनेस लगती है, लेकिन जब मैं चलने लगता हूँ तो वो स्टिफनेस चली जाती है, पेन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अगर ये साइन है तो इसका मतलब है कि बच्चे को या आप जिमनास्ट को प्लांटर फेशियाटिस है। तो इस टिश्यू को रिलीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी काफ मसल्स को स्ट्रेच करना पड़ेगा। जिमनास्ट को अपने स्ट्रेचिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपनी बॉडी में से आप जितने माइक्रो टीयर्स को रिमूव कर सकते हैं, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर सकते हैं, उतनी ही आप अपनी मसल्स और टिश्यू को डेली के ओवरलोड से बचा सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस एनहांस कर सकते हैं। यही एचिलिस टेंडन, ये एक ऐसा टेंडन है जो बहुत सारे प्लेयर्स में इंजर्ड होता है, चाहे आप बैडमिंटन, रैकेट स्पोर्ट्स ले लो, खो खो ले लो, जिम्नास्टिक्स ले लो, ये बहुत जल्दी रप्चर होता है। कैसे, ये हमारी काफ मसल से लेके हील बोन पे अटैच होता है, और कोई भी आपने ट्विस्ट किया, सडन ट्विस्ट किया, सडन जर्क लिया, बॉडी में लैंडिंग की तरफ जर्क ले गया, पैर एकदम से एंकल ट्विस्ट हुआ और ये सीधा आपका रप्चर हो जाता है। प्लस एक है हिप ट्रोकैंट्रिक, ये बरसा होता है हमारे एक हिप जॉइंट में, जो ओवर यूज से स्वेलिंग करता है बार बार। जैसे आप ये देख सकते हैं, दिस इज अनदर शोल्डर इंजरी। इसमें आप देख सकते हैं, दिस इज अ स्टिल रिंग व्हिच अ जिमनास्ट इज डूइंग, हाउ हिज बॉडी इज स्विंगिंग। तो अगर इसके शोल्डर और आर्म की स्ट्रेंथ कम होगी, ग्रिपिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो ही मे हैव एक्सेलरेट्स द चांसेस ऑफ इंजरी which can be very very serious. तो शोल्डर इंजरीज आप देख सकते हैं, आई हैव शोन सम वीडियो कि किस तरीके से आपकी शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन कितना काम करती है और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है शोल्डर्स में हमें। He is our well known Rathore sir doing the training of gymnasts, and he is Rohit Jaiswal who is doing this. तो आप देख सकते हैं कि कितनी बार उसने क्विक टर्निंग्स की है। शोल्डर्स पे पूरा वेट बेयरिंग इज ओवर द शोल्डर, द होल वेट बेयरिंग इज नाउ योर अपर बॉडी, एज आई टोल्ड यू। तो कितना ज्यादा उसने अपना वेट पूरा हाथों पे डाला हुआ है, शोल्डर्स को रोटेट कर रहा है बार बार। कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और कंडीशनिंग की जरूरत है इस मूव को करने के लिए ऑन द बार। So it is a very much coordinated, skilled
moves which you can see on the screen. So ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है. और आप ये देखिए लैंडिंग. So this was a wonderful video which you can see, and this is so beautiful movement. So इससे क्या होगा, ये जो बार बार रिपीटेड मूवमेंट हुई है शोल्डर में, इससे क्या होगा, आपका रोटेटर कफ, जो एक रोटेटर कफ क्या होता है, इसमें 4 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं. उसमें कहीं पे भी अगर आपकी वीकनेस है, डेल्टॉइड मसल का वीकनेस आ गया, इम्प्रॉपर आर्म मूवमेंट हो गई, आपका एक्रोमियन हुक्ड हो गया, तो इसमें क्या होगा कि आपको इंजरीज होने के बहुत चांसेस है. मसल में हो सकती है, टेंडन में हो सकती है, बर्स्ट इंजरी हो सकती है. नाउ अनदर इंजरी इज एल्बो इंजरी. सो यू कैन सी दिस एल्बो, the moment what she is doing, you can see shoulder का angle क्या है, elbow का and forearm. So shoulder, elbow and forearm at 3 different angles, her shoulder is like this. So अगर इस movement में कहीं पे भी बच्चे से proper moves नहीं हो पाती है, imbalance हो जाता है, तो वो क्या होता है, they fall down and सीधा impact कहाँ पड़ा, shoulder पे. शोल्डर पे इसमें बहुत ही सीवियर डिसलोकेशन हो सकती है, और रिपीटेटिवली ऐसे फॉल से आपको शोल्डर इम्पिंजमेंट के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दीज मूव्स. सो हमने ये देखा कि जो कॉमन एक्यूट इंजरीज होती हैं जिम्नास्टिक में, कंट्यूजन हो सकती है. कंट्यूजन से क्या होता है, जैसे आपको बार लग गया, वॉल्ट लग गया, आप गिर गए कहीं पे, आपको कंट्यूजन होता है जिसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी मसल में, ब्रूजिंग हो जाता है, ब्लूइश कलरेशन, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन होता है, उसमें आपको इमीडिएटली आइस रखना चाहिए. रोटेटर कफ स्ट्रेन, ये जो मैंने शोल्डर का बताया. एंकल स्ट्रेन विच इज वेरी कॉमन, आपका एंकल कभी ट्विस्ट अंदर की तरफ भी हो सकता है, बाहर की भी तरफ हो सकता है, रोटेशंस में हो सकता है. मीडियल मेनिस्कस इंजरी, ये एक नी की इंजरी है. इस नी की इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए आपको अपनी बॉडी को कंडीशन रखना पड़ेगा. बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं. ये बैक स्ट्रेन है. देखिए एक ये वीडियो जिसमें एक जिम्नास्ट को बैक स्ट्रेन भी बहुत आता है. देखिए on the floor exercises. So this was wonderful video. You can see how he is doing. And landing was very good. Now he'll do on the opposite side. So another move he will do. Now you see over the shoulders, he is moving his rotations. So much of weight he is putting over the shoulder and splits. So this is how a gymnast do various movements, and you can see how much coordinated balance movements he is doing. So much conditioning of your joint it requires. A great coordination, a great balance you need to have. So this is what all about gymnast. So all gymnasts are very excited when we do some skill over the floor. So these are my recorded videos of Indian gymnast, and all Indian team gymnast, very renowned gymnast. So, so you can see the back strain, how it comes. The gymnast has done some floor exercises. He has done some rotations, various moves, put it some force over the shoulders. The gravity force is coming. So all the upper back muscles are moving, and it leads to stress and strain if your core is not strengthened. You know, core is very important component of your body because it gives you powerful movements. It improves your balance. It improves your coordination. So one needs to work on their core. So at the acute stages, how you can control your injuries? अगर आपको injuries अगर immediate होती है तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको protect करना है. जो मैंने पहले बताया कि आपको rings, walled grips, shoe wear, इन सब का ध्यान रखना है. Belts का बहुत ध्यान रखना है. प्रोटेक्ट करना है अपने आप को. अगर इंजरी होती है तो यू हैव टू सी कि अगर कोई डिसलोकेशन है या कुछ ज्यादा सीरियस इंजरी, यू नीड टू टेक रेस्ट. यू डोंट हैव टू ओवरलोड योर बॉडी. अगर है पेन तो उसमें भी अगर हम करते रहेंगे तो इट लीड्स टू सीरियस इंजरीज. आइसिंग करनी है. आइस का बहुत बड़ा रोल है जो आपको विद इन 24 आवर्स करनी चाहिए. यू शुड सीक मेडिकल एडवाइस. कंप्रेशन करना चाहिए. अगर आपको स्वेलिंग है तो यू शुड यूज कंप्रेशन मूव while applying some crepe bandage
और अदर मोड्स एलिवेशन। सपोज अगर आपके पैर में स्वेलिंग हो गई है तो आप क्या करेंगे, अपने पैर को पिलो के ऊपर अपने पैर को रखेंगे, उसको थोड़ा एलिवेटेड मोड पे लेके जाएंगे ताकि जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा हो सके और आपकी इंजरी जल्दी ठीक हो सके। प्लस मेडिकेशन, सम एंटी इन्फ्लेमेटरी व्हिच आर डोप फ्री यू मस्ट टेक, एंड मोडालिटीज लाइक फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है जो आपको इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन रिहैबिलिटेशन के थ्रू जल्दी हम ठीक करने में हेल्प करते हैं। So we conclude that sports injury is very important, isn't it? अगर हम जब हम इतनी सीरियस ट्रेनिंग्स करते हैं, जब हम इतने सारे स्किल लर्न करते हैं, तो हमारे पास एक मेडिकल बैकअप होना बहुत जरूरी है। एक स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन का एक प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है जिसमें हम अपने बहुत सारे मसल्स ग्रुप्स को स्ट्रेंथन, प्रॉपर बैलेंसिंग, इन सब पे काम कर सके, अपने रिफ्लेक्सेस को ठीक कर सके। क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे फिटनेस के जिम्नास्टिक को लेके? हमें क्या क्या चाहिए? हमें एरोबिक भी चाहिए, एनोरेबिक ट्रेनिंग भी चाहिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, एंड ऑफ कोर्स बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन बहुत महत्व रखती है। आपका बॉडी में प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स, इन सब का रेशियो, वेट टू हाइट रेशियो होना जरूरी है। मोस्टली जिम्नास्ट शॉर्ट हाइटेड होते हैं बिकॉज दे मेक यूज ऑफ देयर बॉडी mechanically, they make use because they are short, so they are able to do their moves easily. So this is a demand of sports and gymnastics. So body composition plays very important role in your sports. So injury prevention अब हम करते हैं कि हम कैसे करेंगे? So pre-game workout, post-game workout, warm-up plays very important role. जब आप अपनी कोई ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें वार्म अप का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वार्म अप क्या करता है? दो तरीके से आपकी हेल्प करता है। It improves the physiological response to exercise. Second, it improves the psychological focus also. अगर आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप है तो अच्छा ब्लड फ्लो होगा आपकी बॉडी के लिए। स्ट्रेचिंग प्रॉपर आप करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होती है। रिकवरी और कूल डाउन अच्छे से करते हैं तो आपकी बॉडी नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होती है। तो वार्म अप के लिए आपको तीन चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, जो है टिश्यू डेंसिटी, टिश्यू लेंथ एंड न्यूरोमस्कुलर। टिश्यू डेंसिटी का मेरा मतलब है जैसे आपकी बॉडी में जो छोटे छोटे माइक्रो टियर्स, ट्रिगर पॉइंट थेरेपी जो हम करते हैं, छोटे छोटे एडहेशंस डेवलप हो जाते हैं, नॉट्स डेवलप हो जाते हैं डेड सेल्स की तरह, उनको रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक फॉर्म रोलर रख सकते हैं अपने पास, कोई भी उसको रख सकता है, जिससे आप अपने हैमस्ट्रिंग्स को फॉर्म रोलिंग एक्सरसाइज, शोल्डर कर सकते हैं, थोरैसिक स्पाइन, अपर बैक की कर सकते हैं विद द यूज ऑफ फॉर्म रोलिंग एक्सरसाइजेस। इससे क्या होगा, आपकी टिश्यू जो डेंसिटी है वो फ्लेक्सिबल होगी। टिश्यू लेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे? स्टैटिक एंड डायनेमिक स्ट्रेचेस करेंगे। न्यूरोमस्कुलर के लिए क्या करेंगे? पीएनएफ स्ट्रेचिंग करेंगे। पीएनएफ स्ट्रेचिंग क्या होती है? प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, जो आप वीक में 3 टाइम्स या 2 टाइम्स कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? मोबिलिटी ड्रिल्स आपको करनी होती है, वेरियस मोबिलिटी ड्रिल्स, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस करनी होती है। इससे क्या होगा? पीएनएफ स्ट्रेचिंग से आपकी स्पीड इंप्रूव होती है, एंड्योरेंस इंप्रूव होती है, एजिलिटी का बहुत बड़ा रोल है पीएनएफ स्ट्रेचिंग में। लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग करनी है, नॉट बिफोर दैट। बिफोर इन अ पार्ट ऑफ वार्म अप यू जस्ट नीड टू डू सम डायनेमिक स्ट्रेचेस। डायनेमिक स्ट्रेचेस कैसे करते हैं? विच यू वर्क ऑन योर फुल रेंज ऑफ मोशन, यू मूव योर limbs haywire in the air and you do some activity drills. So इससे क्या होता है? आपकी बॉडी जो मसल्स है वो प्रिपेयर होती है ट्रेनिंग के लिए, राइट? सो हमें एक्टिविटी स्पेसिफिक वार्म अप, जैसे कि ये जिमनास्ट है तो बहुत ही एक्टिविटी स्पेसिफिक वार्म अप करते हैं, जिससे आपका मेंटल फोकस भी इंप्रूव होता है। सो डायनेमिक स्ट्रेचेस, न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन, what it happens, it helps in reducing the injury risk and improves the muscular tissue density. What it does, आपके जो जितने भी डीप स्टेबलाइजर्स हैं बॉडी के अंदर, कोर मसल्स है, प्रोप्रियोसेप्टर्स है, इन सबको क्या करते हैं? वो परफॉर्म करते हैं, आपकी इंप्रूवमेंट जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करते हैं थ्रू मोर एफिशिएंट एंड पावरफुल मूवमेंट्स। सो क्या क्या मूव्स आप कर सकते हैं डायनेमिक स्ट्रेचेस में? आप मूविंग जॉग्स टू गेट टू द ब्लड फ्लोइंग, बट किकर्स, फॉरवर्ड लंजेस, ट्विस्टिंग मूवमेंट्स, अल्टरनेट रिवर्स लंजेस, jumping jacks, inchworm, high knees, push-up variations. These are some part of dynamic stretching. इससे भी ज्यादा एक जिमनास्ट को करना पड़ता है, आपके शोल्डर मूव्स करने पड़ते हैं with full range of motions. Various activities are included in the dynamic stretching. जिमनास्ट स्ट्रेचिंग को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत टाइम तक हमें एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स का स्ट्रेचिंग कोचेस कराते हैं, सो दैट फुल देयर बॉडी शुड गेट वार्म अप एंड दे शुड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेशन. So these are the specific stretches of your neck,
नेक की रोटेशंस हैं, इसमें आपकी ट्राइसेप स्ट्रेचेस हैं, शोल्डर रोटेटर स्ट्रेचेस हैं। आपको अपने, क्योंकि इसमें रोटेटर कफ इंजरीज बहुत ज्यादा होती हैं एज आई टोल्ड यू, तो ये आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको भी और करूंगी विद अ फ्यू मोर स्लाइड्स। बाइसेप ट्राइसेप स्ट्रेचेस, लो बैक स्ट्रेचेस, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना, काफ मसल को स्ट्रेच करना, ये बटरफ्लाई स्ट्रेचेस करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेचेस हैं जो एक जिम्नास्ट को करना चाहिए बिफोर दे स्टार्ट देयर ट्रेनिंग, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग ओनली। सो शोल्डर स्ट्रेच, एंटीरियर कैप्सूल स्ट्रेच कैसे करते हैं? You can see the other I have shown you. See, this is the pommel horse. He is doing to, and you will see how much shoulder he is going to use. So shoulder ki stretching क्यों जरूरी? I would like to share that. You see how he is moving his shoulder. Total rotation is going. So his rotator cuff muscles are moving. He is giving full weight over his wrist. You can see the wrist is bearing the full weight. सो आप देख सकते हैं कि रिस्ट इंजरी होने के कितने ज्यादा चांसेस हो सकते हैं अगर इसने अपनी मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच नहीं किया होगा, पूरा मसल को स्ट्रेंथ नहीं किया होगा। सो यू कैन सी रिस्ट सबसे ज्यादा इसका पाम डाउनवर्ड फेसिंग है। सो यू कैन सी हाउ शोल्डर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर जिम्नास्ट। सो एंटीरियर कैप्सूल स्ट्रेच आप कैसे करेंगे? दिस इज प्रैक्टिकल। आपको क्या करना है, कोई टेबल या काउच हो, आप बैठेंगे, अपने शोल्डर को इस तरीके से ऊपर रखेंगे। ये हमारे पेरेंट्स को लर्न करना चाहिए जिनके छोटे बच्चे, अपने बच्चों के शोल्डर को स्ट्रेच कराने का तरीका। और इस तरीके से अपना जो दूसरा हाथ है वो आप अपने आर्म के पास रखेंगे एंड आप क्या करेंगे, अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे या आगे की तरफ, तो आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रेच फील होगा अपने शोल्डर जॉइंट पे, एंटीरियर लाइन पे। तो इसीलिए इसको एंटीरियर कैप्सूल स्ट्रेच कहते हैं। इंफीरियर कैप्सूल स्ट्रेच करना बहुत इजी है, अपने हाथ को पीछे के सर के पीछे ले जाके दूसरे हाथ से खिंचाव देना। तो व्हाट यू डू, यू रेज योर आर्म ओवर एंड बिहाइंड द हेड विद द एल्बो बेंट and grasp the elbow or wrist with other hand and you will put a gentle stretch. So आपको तब तक उसको थोड़ा सा stretch करके रखना है जब तक आपको gentle stretch feel नहीं होता, and this is how you can do it on the other side. So posterior capsule कैसे करेंगे, ये मैंने यहाँ पे फोटो दिखाई है, you can see the picture. This is very easy posterior capsule tightness, क्योंकि आपको अपने कैप्सूल्स पे काम करना ही पड़ेगा। शोल्डर की इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए, बार बार उसमें पेन होने के रोकने के लिए आपको ये सब स्ट्रेचेस शोल्डर के करने बहुत जरूरी है, विच आई कैन एक्सप्लेन लेटर ऑन। सो वी कंक्लूड कि वार्म अप और कूल डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म अप बिफोर द मेन एक्टिविटी एंड कूल डाउन आफ्टर द मेन एक्टिविटी। सो कूल डाउन हम कैसे करते हैं, जैसे रोज निर्भय सर ऑलवेज आस्क एंड मंगला सर ऑलवेज आस्क टू चेक द पल्स। Why he asked? Because he wants to check the recovery phase of the child. So हम कैसे cool down phase करते हैं, pulse lower कैसे होती है? You can do it with light aerobic activity, jogging, fast walk or side steps. You can, so what happen, your जो आपकी heart rate है वो धीरे धीरे slow होती है, it comes back to normal, comes to your resting level। और इससे क्या होता है, आपकी रिकवरी से क्या होगा, जो आप इट हेल्प्स इन रिमूविंग द लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो आपकी मसल्स में फटीग है, जो थकावट है, जो टॉक्सिन्स आ जाते हैं, फ्री रेडिकल डैमेज होती है हमारी बॉडी में रोजाना एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, उनको रिमूव करने के लिए कूल डाउन फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस स्ट्रेचिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि डायनेमिक स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द वार्म अप। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग वो होती है जिसमें हम अपनी मसल या जॉइंट को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करते हैं। It can be passive also. I've seen many coaches allowing their gymnasts to do the passive stretching. वो अपने बच्चों को पैसिव स्ट्रेचिंग कराते हैं, कुछ सर्टेन लेवल पे, कुछ रेंज ऑफ मोशन पे उनको रोक के रखते हैं ताकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो सके, उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो इंप्रूव हो सके। It should be last for 30 seconds. So cool down से क्या होगा, it reduces the soreness, stiffness in your body. It stops the blood pooling. It also removes the lactic acid from your body. So heart rate I have told you it is very important, and इसकी stages होते हैं, resting heart rate, working heart rate, recovery heart rate and maximum heart rate, which you can measure from 220 minus age। आप maximum heart rate इस तरीके से अपनी measure कर सकते हैं। So हमें ये पता है कि एरोबिक टारगेट जोन में एक्सरसाइज जो हमें करनी होती है, अगर हम अपना फिटनेस लेवल इम्प्रूव करना चाहते हैं, जब हम एक पीक परफॉर्मेंस पे पहुंच जाते हैं,
और हमें अपना परफॉर्मेंस को एनहांस करना होता है, तो उसमें जो आपका टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम हार्ट रेट का, इट शुड बी 60 to 80% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट, राइट। एंड एरोबिक वो होता है जिसमें आप कार्डियोवैस्कुलर करते हैं, एनारोबिक वो होता है जिसमें आप स्पीड वर्कआउट्स करते हैं, प्लायोमेट्रिक्स करते हैं। इन दैट केस इट कैन बी 80 to maximum heart rate which improves your anaerobic fitness. So अगर आप 60% से नीचे मैक्सिमम हार्ट रेट से नीचे आप अपना कुछ भी सपोज ट्रेडमिल कर रहे हैं, सपोज कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस आई मीन टू से द एरोबिक, so there will be no fitness improvement. So आपको क्या करना है, अपनी फिटनेस को अपग्रेड करने के लिए जैसे कोचेस आपको एक लेवल का एक्सरसाइज कराते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसी तरीके से आपकी जो फिटनेस है, कार्डियोवैस्कुलर, स्टैमिना, they all also improve one by one. So इसमें आपका हार्ट रेट का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है. So these are some other stretches जो आप static stretches में involve कर सकते हैं. Sky reach, toe touches, neck roll, shoulder exercises, side reaches. You can see this whole slide and you can learn what all stretches we do. This is also very important to stretch your low back and glutes, and side stretches for your side core muscles, you know, obliques. This is your quadriceps stretch, your calf muscle stretch, this stretch. This is a frog stretch which your adductors, groin region is getting stretched, which like when you do the splits, so it really helps you if you really stretch these muscles. So now as we are talking here about the sports injuries, हम लोगों ने sports injuries के बारे में बात कर रहे हैं. तो न्यूट्रिशन एक बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है क्योंकि इट एक्ट एज अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी. तो हमें अपनी बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और रेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है टू कीप परफॉर्मिंग एंड रिस्पॉन्डिंग एट द पीक लेवल्स ऑफ द ट्रेनिंग. सो पुअर न्यूट्रिशन से क्या होगा, अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आप अपने मील्स में अच्छा कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स नहीं लेते हैं, तो इट लीड्स टू इंजरी, फटीग, पुअर रिकवरी होगी. और डिहाइड्रेशन, अगर पानी की कमी है आपकी बॉडी में, क्योंकि जब आप कोई भी ड्रिल करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो देयर इज अ वाटर लॉस थ्रू स्वेट, यूरिन, ब्रीदिंग. सो हमारे जो लीवर है उसमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ये कार्ब्स, और हमें स्लोली देता रहता है जब हम अपनी एनर्जी लेवल एक्टिविटीज को करते हैं. तो हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्लूकोज लेवल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. न्यूट्रिशन में मैं आपको ज्यादा तो नहीं, बिकॉज माय टॉपिक इज मोर ओवर दी you can say about the injury prevention. So there are few various nutrition supplements like vitamin C. You can say vitamin C क्यों important होता है, because it is very helpful in maintaining your cartilage, healthy cartilage, healthy bones, or it also acts as a great antioxidant also, which removes the free radical damage from your body. So it is very so this is very important to take. So another is iron. Iron, why it is important? Because iron gives the oxygen to our blood. So it is very essential for our muscle recovery to take the iron. Vitamin A. Vitamin A is very important for the antigen and antibody reaction, which is a defense mechanism of our body, which prevents us from even the infections. So it helps us in keeping our healthy immune system. So the next is calcium and vitamin D. We all know that calcium is very important for our healthy joint and healthy bones, and it needs vitamin D to absorb. Similarly, zinc is very important because it maintains your healthy immune system. Omega-3 fatty acid is very important because it is important for making one hormone which regulates the inflammation in our body. So आपको omega-3 fatty acids walnuts में मिलेगा, flax seeds में मिलेगा, almonds में भी मिलेगा, जो हमें अपने बच्चों को खिलाना चाहिए, जो डेली हमारी inflammation होती है बॉडी में, उसके लिए ये एपिनेफ्रिन रिलीज करता है एक हार्मोन, उसके रेगुलेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है. तो ओमेगा-3 फैटी एसिड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब हम एक रिकवरी मोड में आते हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि इंजरी रिस्क फैक्टर्स को हमें कैसे रिकवरी मोड में लेके आना है. हम एक्टिव रिकवरी कैसे करते हैं, थ्रू स्विमिंग, वॉक, साइक्लिंग, सम अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, स्ट्रेचिंग करते हैं, मसाज थेरेपी लेते हैं, एडिक्वेट स्लीप लेते हैं. स्लीप का एक बहुत बड़ा रोल है, आपको सोना बहुत जरूरी होता है, कुछ घंटे आपकी साउंड स्लीप होनी जरूरी है ताकि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो सके. मेंटली you should be fit enough to understand the skill and do it proper, right? Hydrotherapy is another method जो आप कर सकते हैं, जो पूल में कर सकते हैं, स्विमिंग पूल में. So अब
अब हमारी बात जो हुई है वो इंजरीज को लेकर हुई है। अब मैं आपको कुछ ऐसे मूव्स बताती हूँ, जैसे आप सभी जिम्नास्ट लंजेस करते हो, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करते हो, चेस्ट स्ट्रेचेस हैं, बहुत सारे स्क्वाट्स करते हो, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए, राइट मूव इज वेरी इंपॉर्टेंट। You can see here these are international players and what they're doing, you see how wrong squats they are doing. He cannot do it because उसका hamstring बहुत tight है, और ये किस तरीके से कर रही है कि अपनी मसल्स को कंपेंसेट कर रही है, क्योंकि ये बैठ नहीं पा रही है तो इसने क्या किया, अपना वेट आगे की तरफ करके पैरों को अडक्शन में लेकर आ गई है, ये भी स्क्वाट नहीं कर पा रही है। तो स्क्वाट होता कैसे, दिस इज द राइट वे टू डू द स्क्वाट, जिसमें आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, आपका जो नी और टॉर्सो है वो एक ही लाइन में है, यू कैन सी हियर एट दिस, सो दिस इज द टॉर्सो एंड नी जो एक लाइन में आ रहे हैं, राइट, so this is the right way to do, you can see this is how they are doing the squats. So you need to do the squats in a proper posture and you need to keep spine, इसमें आपकी जो कमर है वो सीधी होनी चाहिए। दूसरा है स्टार लंजेस, फॉरवर्ड लंजेस भी करते हैं। लंजेस हम क्यों करते हैं, आपकी लोअर लिम्ब स्ट्रेंथनिंग के लिए करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लैंडिंग एक्टिविटीज होती हैं आपकी, तो अगर आपका शिन स्प्लिट होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, एंकल स्प्रेन के बहुत चांसेस होते हैं, तो अगर आप लंजेस करते हैं फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टार लंजेस, तो इससे आपका क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर अडेप्टेशन होती है बॉडी में, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती है अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। So you can see how she is doing, her spine is straight, leg is straight over 90-degree angle. So you have to learn how to do the lunges. स्टार लंजेस क्या होता है कि आपको इस तरीके से स्टार बनाना होता है फ्लोर पे, और ऑन 3D मूवमेंट्स यू हैव टू डू, पहले आप इधर मूव करेंगे, फिर आप इधर मूव करेंगे, इधर, फिर बैकवर्ड, लाइक दिस यू हैव टू मूव इट सर्कुलराइज। इससे क्या होगा कि आपका बैलेंस कंट्रोल भी इंप्रूव होगा। दिस इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लंजेस which is very very important to improve your balance and coordination. You can see this video, she is doing the lunges with the weight, she is doing the forward lunges. So these are the lunges. Now hamstring flexibility आपको मैंने बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक ऑफ थाई में आपकी जो मसल्स होती हैं उनको आपको इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपके क्वाड्रिसेप्स हैं चाहे हैमस्ट्रिंग है, दोनों में ही इम्बैलेंस अगर होगा तो आपके वो परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं, इंजरी रिस्क फैक्टर बढ़ा सकते हैं। तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस आप पैसिवली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस TheraBand आल्सो। ये कुछ मैंने एक्सरसाइज बताई है, वॉल एंकल मोबिलिटी, जिसमें आपको जो डिस्टेंस है वो अबाउट इतना रहेगा, अराउंड से 1 फीट का, और इसमें आप क्या करते हो, अपने नी को यू कैन सी जहाँ पे आपका ये पटेला यहाँ पे टच हो जाए, इतना आपने गैप रखना होता है। उससे क्या होगा कि आपकी ये मसल जहाँ पे जब टच होती है तो ये मसल यहाँ पे स्ट्रेच देती है, प्लस ये आपका जो ये फीट है ये भी यहाँ पे स्ट्रेच देता है। तो दिस इज ऑल्सो वॉल एंकल मोबिलिटी हम कहते हैं। तो इससे आप एंकल मोबिलिटी की स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अच्छा, हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच क्या करते हैं, सीधा स्ट्रेच करते हैं, बट वी कैन स्ट्रेच इट ऑन बोथ द साइड्स। आप अपने पैर को जब सीधा स्ट्रेच करते हैं हैमस्ट्रिंग, अगर आप उसको अंदर की तरफ रोटेट करेंगे तो आपके क्या होगा, अडक्टर्स भी स्ट्रेच हो जाएंगे। अबडक्टर्स स्ट्रेच होंगे, जब बाहर की तरफ करेंगे तो सिमिलरली आपकी जो इनसाइड मसल ऑफ थाई है वो भी स्ट्रेच होगी अपार्ट फ्रॉम हैमस्ट्रिंग। तो इसमें आप अपने अडक्टर्स को भी स्ट्रेच कर सकते हैं, बाकी जो मसल्स हैं। सो यू कैन सी दिस एक्सरसाइज, फीट को पहले उस तरफ, देन इसी फीट को आप अंदर की तरफ ले आएंगे तो आपकी तीनों तरफ स्ट्रेचेस हो सकती है। ये क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच है, जिसमें देखो आपका जो स्पाइन अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट होना चाहिए, यू शुड ट्राई टू टच विद योर हिप जॉइंट। प्लस ये हाफ नीलिंग है। हाफ नीलिंग स्ट्रेच में क्या है, देखिए स्पाइन स्ट्रेट है, आपका ये नी जॉइंट है, एंड योर ग्लूट्स, दीज आर योर ग्लूट्स, बैक ऑफ योर हिप मसल्स, सो दीज आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी हाफ नीलिंग हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच हो रहा है, हिप मसल्स आर गेटिंग स्ट्रेच। So these are very specific stretches which I'm telling you, which you should practice in your daily routine, you know, and it will really help you a lot. ये हमारा चेस्ट पेक्टोरल रीजन आप देख रहे हैं स्ट्रेच, आप वॉल के थ्रू, यहाँ पे एक वॉल का अगर कॉर्नर है उसको पकड़ के आप अपने स्पेसिफिक ग्रुप को स्ट्रेच कर सकते हैं। शोल्डर भी स्ट्रेच होगा, चेस्ट मसल भी स्ट्रेच होगी, और बोथ द साइड्स में आप अपना पेक्टोरल, यू कैन सी दिस इज अ पैसिव स्ट्रेचिंग जो कोचेस हेल्प कर सकते हैं, या बच्चे आपस में एक दूसरे की इस तरीके के स्ट्रेचेस करा सकते हैं।
So coordination, gymnastic is all about a skill game and it requires a lot of balance and coordination. So जब भी हम balance और coordination की बात करते हैं, you can see this is a beautiful picture which is a symbol of great balance and coordination move in the air. And इसमें क्या करना होता है हमें अपनी we need to select our right muscles at right time with proper intensity to achieve proper action. तो आप देख सकते हो gymnast has uses her all the joints in proper range of motion, full very excellent flexibility she has maintained, very nice posture, very elegant posture she has maintained, and this is how she is doing the well coordinated balance posture exercise. So ये कैसे achieve होगा? Through regular practice, through regular exercises, activating your motor responses, जो किससे आएगी? With your deep sensation, vision, मोटर सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन, डेली प्रैक्टिस करेंगे। ये मैंने कुछ वॉबल बोर्ड्स दिखाए हैं, इसमें आप देखिए ये बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं, हाई नी कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, साइड लेग कर सकते हैं। तो एक वॉबल बोर्ड पे आप इस तरीके की ये सब बैलेंसिंग, अगर आप एक वॉबल बोर्ड ले लेते हैं तो उस पर ये सब इस तरीके की वॉबल बोर्ड एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, जो बहुत हेल्प करेगा आपको बैलेंस करने में। तो यू कैन सी शी इज अ टेबल टेनिस प्लेयर, जो इवन आप भी कर सकते हो। आप छोटी छोटी बॉल्स नीचे रखोगे and you will try to pick them from all the directions. तो ये randomly हमने balls रख दी है floor पे. Now she is a 12-year-old child and you can see she is not so perfect. She is just trying to pick up the balls from the floor, and now what she is doing, she is touching the same balls from the different places with her feet. तो ये exercise भी आप अपनी gymnastic आप पोस्ट वर्कआउट में इन्वॉल्व कर सकते हो, जिससे आपके बच्चे का न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, बैलेंस बढ़ेगा, फुट वर्क करेगा। इसमें बहुत ही अच्छा बच्चे का फुट वर्क भी हो रहा है। आप देख रहे हो बच्चे का फुट वर्क, देखो ये कैसे बैलेंस कर रही है, क्या कर रही है, फॉरवर्ड जंप कर रही है। ये देखो शी इज टेकिंग अ लीप फ्रॉम हर अनदर फुट, दूसरे फुट से प्रेशर लेके आगे जंप कर रही है, फॉरवर्ड कर रही है, फिर रिवर्स कर रही है। So why I'm showing all these exercises to you, because these are very practical exercises and you can make your child to do and practice all these. Plyometric क्या होता है? Plyometric is an exercise which gives you quick stretches to your muscle and it leads lot of muscular contraction from the you can say eccentric mode of contraction to concentric, right? जैसे कि ये जंप है, इसमें क्या हुआ, पहले बॉडी लोअर हुई, फिर ऊपर जाके फिर हुई है, तो ये क्या हुआ आपका eccentric contraction, यानी away from your body is eccentric and then lower down your body is concentric. So it is a very good mode. Plyometric helps in improving your speed, your balance, your agility, coordination and muscular power. So it is a mode. Plyometric exercises, we should do it in our practice trainings, so that like planks है, squats है, क्रंचेस हैं, ये सब हमें करने इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमारे बच्चे का मस्कुलर एंड्योरेंस डेवलप होगा, उसकी जो पावर है वो इम्प्रूव होगी, स्टैमिना इम्प्रूव होगा, उसकी जो लेग्स की स्ट्रेंथ है या अपर बॉडी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी, कोर इम्प्रूव होगा। So here we conclude that how can injury be prevented. So we have already discussed that हमें अपने हमेशा सेफ्टी गियर्स पे ध्यान देना है, चाहे हम कंपटीशन में हैं, चाहे ट्रेनिंग में हैं। Wrist guards, hand grips, footwears, ankles or elbow braces and pads, they are really important. Another thing, do not play through the pain. अगर if you are hurted, suppose अगर आपको चोट लगी है तो please you need to see a medical practitioner. You have to follow the instructions for the treatment, right? You have to make sure कि हमारे पास first aid available है during all the competitions, and we ensure that all the apparatus are in good condition, floors, secure mats. So we need to learn that how we can prevent us from the injuries, right? We need to see the skill. जब हमें कोई कोच नया स्किल सिखा रहा होता है तो we have to learn it in a very nice way so that we should not do any wrong movements. अगर हम wrong movement उसको, it's better कि पहले आप उसको अच्छे से learn करें फिर implement करें। अगर आप learn अच्छे से नहीं करेंगे तो आप implement कैसे करेंगे? और अगर wrong implement हम करते हैं, दो practice से ही आप strong बनेंगे, लेकिन अगर उसको ज्यादा आपने wrong biomechanical errors में कर दिया and then it may lead to severe injuries. So warm up करेंगे अपने muscles को with light aerobic activities, with lot of jumping jacks, lot of dynamic stretches. I told you dynamic stretches
very important, because it is a neuromuscular adaptation also which gives to your body, right? So आपकी nerves को भी बहुत strengthen out करता है, बहुत adaptations हमारी body में होती हैं जिससे हमारी muscle, joints, capsule, they all get strengthened out. So apart from this fitness, what do you think? Sports psychology is equally important, क्योंकि जो हमारे एथलीट्स हैं उनके अंदर जो फियर है, जो उनके अंदर एक डर होता है कि हम इस स्किल को कैसे करेंगे, इन ऑडियंस हम कैसे करेंगे, हाउ वी विल प्रिपेयर। तो एक साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हमें मेंटली प्रिपेयर करती है फॉर कॉम्पिटिशन। मेंटल टफनेस लाइक फिजिकल कंडीशनिंग, it is also achieved through a systemic and consistent practices of specific skill. तो हमें अपनी फोकस ट्रेनिंग करनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, अपने जो रॉन्ग मेथड्स हम कर रहे हैं अगर कुछ, तो उसको एक डायरी बना के लिखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलतियां करते हैं, फिर अपने कोच से हमें हेल्प लेनी चाहिए। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर फिटनेस। सो मेंटल ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट। इफ यू ट्रेन, योर ब्रेन गेट्स फिटर। It is just a natural reaction to your brain, no learning involved. More you are focused, your focus will be improved. So at last I would like to say thanks to all. Winners always train and losers complain. So thank you so much. आप मुझे मेरे ईमेल पे अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे यूट्यूब पे विद द नेम फिजियोल्यूशन, जिसमें मैं अपनी वीडियोस, इंजरीज जो होती हैं या मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग की वीडियोस डालती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। निर्भय सर। हेलो, हेलो मैडम, पठानिया हेलो सर। सर। हाँ जी सर। Well, on behalf of all the, Pathania sir is not there. Are you नहीं, there, he's Pathania sir? there. Yeah, he's there. पठानिया सर। Yes, ma'am. Finish. Yes. Hello. आ रही है आवाज, बोलिए सर। Yes. Thank you, ma'am. थैंक यू आपने सर। हमारे बच्चों को काफी कुछ बताया है। उसके लिए मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईस्टर्न सेंटर कलकत्ता की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि हम जब भी आपको याद करेंगे आप दोबारा हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे और उनको इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। I want to add something, Dr. Bandana. हाँ जी सर। Actually, your lesson was very good prepared. You have covered all the topics from physio to nutrition to psychology and everything. Yes. So it was exciting. I think the coaches might have been benefited from this, but we have many kids in these sessions also. So I think they Yes, don't sir. understand all this. But what I want from you in the next class, I would like to prepare a lesson like this. Suppose in gymnastics we sustain maximum ankle injury, knee injury, wrist injury, shoulder injury. If you show some demonstration of how to rehabilitate after injury, Sure. I think Yes. that will be more beneficial for the student, and they will be much Yes. more interested to see that, because everywhere physio is Of course, not sir. available with many gymnasts. So what I think Yes, is sir. Yes. techniques how to rehabilitate, then I think it will be the best idea and will be the best material given to the players to do some rehabilitation exercise at their own. So thank you very much. It was a very nice session. Appreciated. Thank you. डॉक्टर वंदना, हाँ जी सर। आपने बहुत अच्छा लेसन दिया है और बच्चों को अच्छी तरह से बताया कि जो इम्पोर्टेंस हम भी बताते हैं कि कितनी बॉडी की प्रिपरेशन की इम्पोर्टेंस है। तो सब जूनियर जो हमारे ग्रास रूट के बच्चे हैं, रिदमिक है और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के हैं, तो हम इसी पैटर्न पे बच्चों को एक्सरसाइज करा रहे हैं ताकि उनकी बॉडी पहले से तैयार हो जाए, सभी मसल्स तैयार हो जाए जो आपने बताए थे, अपर बॉडी और लोअर बॉडी, एंकल एंड रेस्ट एंड शोल्डर,
तो हम उसी प्रकार की एक्सरसाइज उनको दे रहे हैं, तो बच्चों के लिए बड़ा फायदेमंद है। और आपने तो वो जो कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप इतनी प्रिवेंशन उनको बता देंगे तो आपके पास कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे बच्चों को। अब इस प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। तो वेरी वेल टेकन डॉक्टर वंदना, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. I will be there to tell you more about the rehabilitation and injury prevention exercises. जैसे अशोक सर ने मुझसे बोला है कि रिस्ट की कौन कौन से स्ट्रेचेस हैं जो आप प्री वार्म अप में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अपोमल हॉर्स में देखा था आपने कि जो पूरा उसका इम्पैक्ट था वो रिस्ट जॉइंट पे ही था, तो आप सोच सकते हैं कि उस रिस्ट जॉइंट पे उसको कितना इम्पैक्ट आ रहा होगा जिसका पूरा वेट ही रिस्ट पे है। पे तो नहीं, लेकिन रिस्ट विच इज समथिंग, अगर उसमें अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फ्लेमेशन होता है तो आपकी इवन ग्रिपिंग भी इम्पेयर्ड हो जाती है। तो रिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो इंजरी होने के जिसके बड़े सारे चांसेस भी होते हैं, तो इसलिए हम बार बार उनको सपोर्टिंग टेप्स भी लगा के जिमनास्ट खेलते हैं। सो आई हैव सीन दैट। सो आई वुड लाइक टू लव टू शेयर ऑल द एक्सरसाइजेस व्हिच आर इंपॉर्टेंट। Dr. Vandana, हाँ जी सर। I'm Dr. Baba. हेलो सर। My suggestion is please make it specific Thank to you, sir. gymnastics also. Yeah. Because what I've seen is whosoever came here when he give LTDA program, Okay. just give it the Canadian research done on a normal population. Hmm. For example, gymnastics, the gold medal starts for the girl section from 16 years onward. जबकि जो हम दिखा रहे हैं 9 stages, it comes, according to this, it comes after 5th stage, 6th stage at the age of 21, 22. I think we also should go a little bit specific in this. But secondly, my another suggestion is, say, the videos and the slides should also be slightly specific. For example, now you have given an example of pommel horse. Yeah. When you discuss the shoulder flexibility, you showed the pommel horse video. Okay. So that's the best for the wrist, because there is a lot of wrist. There is no shoulder flexibility required in that. And secondly, I observed during plyometric training, which slide you have shown. You have shown some pictures, some their images which were not related to that, like planks. It has nothing to do with the plyometrics. So my suggestion is, next time please be specific to gymnastics so the kids understand. This is regarding gymnastics. Okay. This is my humble Sir, suggestion. basically planks we do for the overall strengthening of your core muscles. इसमें क्या होता है कि आपकी जो abdominal muscles हैं, they really work. Exactly. But that came under plyometric slide. And that, for example, I even, a person like me can understand this. Plank is a plyometric exercise. This is my humble suggestion. Okay, so you want that if I'm showing some video and if there is the core is getting used, so I should use that core exercise in that video. Exactly. Okay. So that the children get Okay. more benefit. Yeah. This is my humble suggestion. Yeah. Though I have done in other slides, but this plyometric was the overall. I showed some floor exercises for the core. This, doctor, just my observations. I thought it better I share with you. Yes. Yeah. Thank you very much. Otherwise, it was fantastic. Very informative. You covered everything. Yes. From psychology to nutrition, everything you covered. Yes. Thank you. Thank you very much. Thank you. So I have written my email, and you all can follow me also on YouTube if you have want to learn some specific exercises which I keep adding on my channel. And I have written my email so that if anybody has any query, any questions, like I have discussed about the foot मैंने जो बोला है, पेरेंट्स को अपने बच्चों के फुट जरूर चेक करें, और अगर उनको लगता है उनके बच्चों के फ्लैट फीट हैं या केवस फीट हैं, किसी प्लेनस फीट हैं, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको आर्चेस के बारे में बता सकते हैं, उनके बच्चों के फीट्स को आप करेक्ट कर सकते हैं। सो फीट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं फुट बायोमैकेनिक्स पे भी काम कर रही हूँ, क्योंकि
फुट का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे एथलेटिक्स है, जिम्नास्टिक है, खो खो है, कबड्डी, एनी इन एनी एरिया। अगर हम अपने फीट को इवन हम जो इवन स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, अगर उनके फ्लैट फीट हैं इस एज में 60+ में भी, तो उनको हमेशा कुछ बर्निंग सेंसेशन या पैरों में दर्द भी रहता है कई बार, और उनके बायोमैकेनिकल एरर्स होते हैं जिससे उनको लो बैक स्ट्रेन्स भी रहती हैं। तो ये मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी मैंने सीखा है, तो इसलिए मैं फुट को कुछ ज्यादा एम्फसाइज भी करती हूँ। एंड जिम्नास्टिक तो है ही सारा आपका फुट वर्क एंड नी एंड कोर, उसमें कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जो इन्वॉल्व नहीं है। तो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। एनीथिंग एल्स सर, निर्भय सर? Okay, very good. It's all Thank right. you, Dr. Vandana. Thank you very much. Thank you so much, sir. So here we end the session. Yeah. Thank you, madam. Okay, thank you everyone. Thank Bye, you, sir. ma'am. Bye. Thank you so much. Thank you.